Hello guys, I Harshita Parekh welcomes you again in my online study classes. I am back here with the topic Chemical Kinetics. This is second lecture of this chapter. In previous lecture we have discussed that what is chemical kinetics. Other than that, the rate expression, rate of reaction, इन सब की बात हमने जो है वो प्रीवियस लेक्चर में कर ली थी. Types of rate of reaction also, average and the instantaneous rate of reaction. These are the topic which we have already discussed. In today's lecture, I am going to start the factors here, factors which affect to the rate of reaction. But before starting factors of rate of reaction, हम बात करेंगे about the rate of reaction of appearance and the rate of reaction of disappearance. ये दो terms की हम बात करेंगे और उसके अलावा हम रेट एक्सप्रेशन जो है वो देखेंगे और उसके बाद हम अपना मेन टॉपिक जो है फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को उसको डिस्कस करेंगे आज की क्लास में. सो लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक. चलिए सबसे पहले मैं एग्जांपल ले लेती हूँ किसी भी रिएक्शन का. सपोज दैट एग्जाम्पल जो है वो आप लीजिए 2 moles ऑफ A व्हेन रिएक्ट विथ 3 moles ऑफ B it will form 4 moles of C. Suppose that ये कोई chemical reaction है जहाँ पे कि 2 moles of A react with the 3 moles of B, means A and B are the reactant here. To convert the 4 moles of C here, जो कि यहाँ पे product है. चलेगा. अगर इस reaction की मैं बात करूँ तो rate of reaction यहाँ पर जो होगी वो क्या होगी उसकी बात करते हैं पहले. As we all know that rate of reaction क्या होती है? This is the change in concentration with time. ये आपके पास में प्लस माइनस में अगर बता रहे हैं this is the rate of reaction. The change of concentration with the time वो है rate of reaction. This is about the instantaneous, means for a particular time अगर रेट को बताया जा रहा है तो वो आपके पास में dc upon dt से rate of reaction जो है वो शो होगा. While if we just talk about the time interval del c upon del t and this is average rate of reaction. चलिएगा बात करते हैं यहाँ पे instantaneous की ही बात करते हैं. In the respect of reactant we use the negative sign here. Reason because ये reactant है और reactant का concentration during the reaction decrease होता है. So this negative sign shows the decreasement in the concentration of A here. This is the stoichiometric coefficient here. इसे आप अपॉन में लिखते हैं. हमेशा ध्यान रखिए for the reactant negative sign, for product positive sign. Negative in the positive sign shows the decrease in the concentration and increase in the concentration of product as well. अब यहाँ पर अगर बात किया जाए स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो उन्हें आप अपॉन में लेके जाएं. आफ्टर दैट A के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँ तो दिस विल बी द dA अपॉन dt here because D is the change in the concentration, small, very minute change को जो है वो शो कर रहा है. dA that is molar concentration of reactant A here with the time dt, small minute change D से बताया जा रहा है. It can be further, rate can be further expressed in the terms of B here minus for the reactant stoichiometric coefficient upon में जाएगा concentration of B with the time dt. प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में भी आप जो है वो रेट को बता सकते हैं एंड दैट विल बी पॉजिटिव 1/4 स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है अपॉन में गया D मोलर कॉन्सेंट्रेशन चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C है ये with the respect of time dt. This is the rate of reaction here for the following reaction. ये जो भी reaction है इसके लिए rate of reaction जो है वो इन terms में बताई जा सकती है. Now I am going to explain the terms. rate of appearance की मैं अगर बात करूँ rate of reaction of या rate of appearance ही बोल दीजिए आप डायरेक्ट rate of appearance
रेट ऑफ अपीयरेंस, देखिएगा रेट ऑफ अपीयरेंस जो है वो आपको हमेशा ध्यान रखना, रेट ऑफ अपीयरेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस भी हमेशा पॉजिटिव होता है। रेट ऑफ अपीयरेंस बोल रहा है तो ये किसके लिए होगा, इट विल ऑलवेज फॉर द प्रोडक्ट। रीजन, अपीयर कौन हो रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन, प्रोडक्ट, ऑब्वियसली यस प्रोडक्ट अपीयर ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो ये आपके पास में रेट ऑफ अपीयरेंस हमेशा प्रोडक्ट के लिए आता है and it will be the d change in the concentration of C upon dt, ये है यहाँ पर for this reaction, ये यहाँ पर जो है वो क्या है, this is the product here, change in the concentration of product, right, साथ में stoichiometric coefficient आपको जो है वो देना पड़ेगा 1/4 dC upon dt for this particular reaction, rate of appearance है। चलिए एक जनरल रिएक्शन में लेती हूँ और फिर एक बार रेट ऑफ अपीयरेंस को समझाती हूँ। R, P, R is a reactant here, P is the product which is formed here। rate of appearance की अगर मैं बात करूं, rate of appearance A appearance किसका होगा, प्रोडक्ट का होगा, मतलब ये आपके पास में आएगा dP upon dt, right। One more thing I just want to clear here, जब आप rate of appearance की बात करते हैं या बात करते हैं rate ऑफ डिसअपीयरेंस की, दोनों ही केस में आपके पास में जो है वो साइन आपको नहीं जो है वो शो करने हैं, यहाँ बोथ द केसेस विल बी पॉजिटिव। रीजन, डिसअपीयर, अपीयर जो है वो बता रहा है जब आप रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की, द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव साइन शोज द फॉर्मेशन, या तो जो है वो यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो बन रहा है, इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन को बताता है, या डिसअपियर हो रहा है, डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन को बताता है। तो प्लस इन द माइनस साइन शोज द इंक्रीज और द डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन, राइट। यहाँ आपको नाम से ही समझ में आ रहा है रेट ऑफ अपीयरेंस, और अपीयर कौन होगा, प्रोडक्ट अपीयर होगा, मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस प्रोडक्ट के लिए है, while the rate of disappearance will be for reactant है। यहाँ पर अगर मैं ROD अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, R rate of disappearance की बात करूँ तो ये आप बता सकते हैं by the change in the concentration of R with respect to time, ये आपके पास में हुआ rate of disappearance, right? This is rate of appearance and the rate of disappearance. Disappearance, rate of disappearance हमेशा reactant के केस में जो है वो बताया जाता है या reactant के लिए बताया जाता है, while rate of appearance for product के लिए mention होती है। रिएक्टेंट के लिए मेंशन हो रही है क्योंकि डिसअपियर हो रहा है, अपीयर हो रहा है, प्रोडक्ट अपीयर हो रहा है। सो देयर इज नो नीड टू मेंशन द साइन हेयर, प्लस माइनस साइन जो है वो आपको नहीं जो है वो बताने होते हैं, इसकी जगह इन्हें ऐसे मॉड में जो है वो लिख दिया जाता है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस एंड द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, जिसमें कि ध्यान रखिएगा रेट ऑफ अपीयरेंस मीन्स फॉर प्रोडक्ट बात हो रही है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मीन्स फॉर रिएक्टेंट जो है वो बात हो रही है। वी विल नेवर यूज द पॉजिटिव और द नेगेटिव साइन फॉर द रेट ऑफ अपीयरेंस एंड द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। गॉट इट? ये हुआ अबाउट द रेट ऑफ अपीयरेंस एंड द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। आगे जो है वो हम बात करते हैं एक रिएक्शन का एग्जाम्पल लेकर के, वापस जो है वो रेट एक्सप्रेशन को देखते हैं। हैव अ लुक। N2O5 दिस इज नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। अगर आप इसका जो है वो थर्मोलाइसिस की बात करें, थर्मोलाइसिस मीन्स डीकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ थर्म, हीट की प्रेजेंस में N2O5 का थर्मल डीकम्पोजिशन होता है या थर्मोलाइसिस होता है, एंड वी विल ऑब्टेन NO2 एंड O2 रेस्पेक्टिवली। बैलेंस अगर कीजिएगा 2 मोल्स इसके आएंगे तो 4 मोल NO2 आएगा, 5 to the 10 एंड दिस इज बैलेंस नाउ, राइट। दिस इज अ रिएक्शन, ये कोई रिएक्शन है जिसमें कि नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का थर्मोलाइसिस हो रहा है इन दी प्रेजेंस ऑफ थर्म, इन दी प्रेजेंस ऑफ हीट। ये रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, NO2 बन रहा है और O2 जो है वो बन रहा है। चलिए इस रिएक्शन के लिए अगर आपको रेट एक्सप्रेशन देना है तो आप रेट को किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। हैव अ लुक हियर। इफ वी जस्ट टॉक अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा माइनस, रीजन दिस इज द
रिएक्टेंट यार, और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है, -1/2 कोएफिशिएंट है, अपॉन में गया D and 2O5. This is the change in the molar concentration of nitrogen pentoxide with the respect of time is equals to, rate can further define in the terms of NO2, जो कि हो जाएगा +1/4 D NO2 upon dt और further प्लस DO2 अपॉन dt। कोई स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है, 1 है तो 1/1 चाहे नोट करवाइए और चाहे नोट मत कीजिए। चलिए आगे हम बात करें अबाउट दिस रिएक्शन। ये हुआ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट का एक्सप्रेशन जो है वो हुआ, रेट को इस 3 तरह से जो है वो बताया जा सकता है। नाउ इफ वी जस्ट टॉक अबाउट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस हियर, रेट ऑफ डिसअपियरेंस की अगर बात किया जाए तो देखिएगा क्या होगा, डिसअपियर कौन हो रहा है। जब आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द रेट ऑफ डिसअपियरेंस हियर, तो हमेशा डिसअपियर कौन होता है, रिएक्टेंट विल गेट डिसअपियर ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो ये बात किसकी कर रहा है, N2O5 रिएक्टेंट नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के केस में आपको जो है वो बताना है यहाँ पर रेट, एंड दिस विल बी 1/2 T N2O5 अपॉन dt हेयर। यहाँ मैं बात करूँ माइनस का साइन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, बिकॉज आप मोड को काम में लीजिए और डिसअपियरेंस है ये अपने आप डिक्रीज को बता रहा है, रिएक्टेंट के लिए डिसअपियर होने को बता रहा है। सो देयर इज नो नीड टू मेक द नेगेटिव साइन हेयर। ये हुआ रेट ऑफ डिसअपियरेंस। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अबाउट द रेट ऑफ अपीयरेंस, तो रेट ऑफ अपीयरेंस देखिएगा क्या होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस। रेट ऑफ अपीयरेंस जो है वो ऑक्सीजन के लिए भी हो सकती है और NO2 के लिए भी हो सकती है। तो अगर मैं NO2 की बात करूं, इट विल बी 1/4 D NO2 अपॉन dt, और रेट ऑफ अपीयरेंस फॉर ऑक्सीजन कैन बी, मोड आपको लगाना है, आप प्लस माइनस साइन की जगह मोड लगाए। रेट ऑफ अपीयरेंस फॉर O2 1/1 लिख दीजिए, 1/1 कुछ नहीं होता है, DO2 अपॉन dt। 1/1 लिख भी सकते हैं और आप इसको मत भी लिखिए तो भी चलेगा। दीज आर द प्रोडक्ट्स हेयर जो कि अपेयर हो रहे हैं, जबकि ये प्रोडक्ट है, सॉरी ये रिएक्टेंट है जो कि डिसअपियर हो रहा है। और इसी के साथ में हमारा ये जो रेट ऑफ अपीयरेंस एंड द रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ये वाली चीज भी जो है वो मैंने आपको बता दी। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट टू द रेट ऑफ रिएक्शन। कीप वॉचिंग। यस, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। Here are many factors which affect to the rate of reaction. बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। हम बात करते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेट को अफेक्ट करेंगे। Have a look. If we'll just talk about the nature of reactant. नेचर ऑफ रिएक्टेंट जो है वो आपके पास में अफेक्ट करता है किसको, रेट ऑफ रिएक्शन को। The physical state of reactant, ये भी आपके पास में अफेक्ट करती है किसे, रेट ऑफ रिएक्शन को। The third one is concentration of reactant, it also affect to the rate of reaction. कैटलिस्ट अफेक्ट करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर टेम्परेचर ऑल्सो अफेक्ट टू द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को जो है वो टेम्परेचर अफेक्ट करता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, intensity of light is the factor which affect to the rate of reaction. Surface area
ऑफ रिएक्टेंट हेयर। These are some factors जो कि आपके पास में रेट ऑफ रिएक्शन को जो है वो अफेक्ट करते हैं। हम इनको जो है वो पर्टिकुलरली डिस्कस भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम विद द टॉपिक नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट जो है वो किस तरह से आपके पास में रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है उसकी बात करते हैं। देखिएगा, रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट that is inversely proportional with the rate of reaction। रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही जो है वो आपके पास में कम हो जाता है। रिएक्टेंट जितना स्टेबल है मतलब कि आपके पास में वो उतना ही जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कम देगा, या आप ये कहें जितना स्टेबल जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होना चाहेगा, रेट जो है वो क्या होगी, कम होगी। इट मीन्स इफ द रिएक्टेंट इज नॉट स्टेबल, या जितना कम स्टेबल है रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा, रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा है रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास में उतना ही कम होगा। चलिए इसके अलावा और बात करते हैं हम। एक तो हमारे पास में स्टेबिलिटी फैक्टर हो गया। अदर फैक्टर, if we'll just talk about the reactant, if the reactant are ionic molecules, तो ionic molecule जो है या ionic species जो है, आयोनिक स्पीसीज अगर है तो उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ज़्यादा होती है। रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द आयोनिक स्पीसीज वो ज़्यादा होती है कोवेलेंट मॉलिक्यूल की कंपैरिजन में। कोवेलेंट अगर है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कम होगा। आयनिक स्पीसीज अगर है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी। अगर आयनिक रिएक्शन है, आयनिक रिएक्टेंट्स हैं, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी। कोवेलेंट अगर जो है वो रिएक्शन है, कोवेलेंट से बॉन्डेड अगर मॉलिक्यूल हैं, then the rate of reaction will be lesser than comparison to the ionic species। रीज़न की अगर मैं बात करूं, जैसे हमने HCl की रिएक्शन हमने कल भी करवाई थी। HCl की रिएक्शन अगर आप करवा दें विद द सिल्वर नाइट्रेट, वी नो इट वेरी वेल, ये क्या है ऑलरेडी जो है वो आपके पास में दिस इज द आयोनिक स्पीसीज। और जब आयोनिक स्पीसीज है ऑलरेडी जो है वो आयोन्स के अंदर जो है वो टूट जाती है या टूटी हुई होती है, पार्शियल चार्ज इनके ऊपर जो है वो होते ही है, बॉन्डिंग तो इनके बीच में कुछ होती ही नहीं है। इन द आयोनिक स्पीसीज देयर इज ओनली द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोई भी जो है वो ए बी आयोनिक कंपाउंड अगर है तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये बंधे हुए हैं, बॉन्डिंग जो है वो नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। दैट इज वाई इनको तोड़ना जो है वो ईजी होता है, राइट। These can split or these can dissociate into its respective ions। जल्दी जो है वो टूट जाएंगे, और जब ये जल्दी टूट जाएंगे तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी जो है वो जल्दी करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देंगे। सो इट विल फॉर्म AgCl, प्रेसिपिटेट इसका जो है वो बनता है, एंड HNO3 विल बी फॉर्म हेयर, राइट। सो दिस इज द आयोनिक रिएक्शन। ये आपके पास में कोई आयोनिक कंपाउंड है। जब आयोनिक कंपाउंड्स का रिएक्शन हो रहा है, किसी आयोनिक स्पीसीज का अगर जो है वो रिएक्शन हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी। बहुत फटाफट से जो है वो ये रिएक्शन हो जाती है, इसमें बहुत कम टाइम जो है वो लगता है। नेक्स्ट मैं अगर बात करूँ अबाउट द कोवेलेंट, जस्ट लाइक अमोनिया का जो है वो हमने, या सॉरी N2 की जो है वो हमने बात की थी। This is N2 molecule. When the N2 molecule attach with the hydrogen, it will form ammonia। NH3 बन रहा है, 2 moles 3 moles आपको लेना पड़ेगा। This is the N2 molecule। ये H2 molecule के साथ में जब रिएक्ट करेगा 3 moles of the hydrogen, when react with 1 mole of nitrogen, it will form the ammonia। आप देखिएगा यहाँ पर बॉन्डिंग किस तरह से है, समथिंग लाइक दिस। नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से जो है वो सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। हैव अ लुक हियर, बॉन्ड ब्रेकिंग, राइट। जबकि ये बॉन्ड्स ब्रेक हो तभी तो नए बॉन्ड फॉर्म हो पाएंगे, मतलब यहाँ पे पहले बॉन्ड ब्रेकिंग चल रहा है, बाद में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इट विल टेक मोर टाइम एज कंपेयर टू द आयनिक रिएक्शंस। आयनिक रिएक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आयन जो है वो बाइंडेड हैं, बंधे हुए हैं। दैट इज वाई
इजीली जो है वो रिएक्शन देंगे, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। सो दिस इज अबाउट द आयनिक स्पीसीज एंड द कोवलेंट स्पीसीज, जिसमें कि आयनिक स्पीसीज की रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा ज़्यादा होगी, आयनिक रिएक्शन के लिए रेट ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द कोवलेंट रिएक्शंस। चलिएगा, स्टेबिलिटी की हमने बात की, आयनिक स्पीसीज एंड द कोवलेंट स्पीसीज की बात की। एक और जो है वो बात करते हैं, फेज की बात कर लेते हैं हम। फेज किसकी? आपके पास में जो रिएक्टेंट्स हैं, इफ द रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट इन द सेम स्टेट और द सेम फेज, फेज जो है या स्टेट जो है, फिजिकल स्टेट की बात कर रही हूं, अगर ये स्टेट सेम है तो आपके पास में रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। इफ द फिजिकल स्टेट इज नॉट सेम तो रेट ऑफ रिएक्शन भी आपके पास में कम आता है। जस्ट लाइक इफ विल टॉक अबाउट द होमोजीनियस एंड द हेट्रोजीनियस स्पीसीज, होमोजीनियस एंड द हेटेरोजीनियस, हेटेरोजीनियस चलेगा। होमोजीनियस है तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होती है, हेट्रोजीनियस के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कम होती है, धीरे होती है। ये हुआ अबाउट द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट की बात। अगले जो है वो टॉपिक की बात करते हैं, कीप वॉचिंग। यस, नेक्स्ट फैक्टर इज फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। अभी बात किया था, अगर रिएक्टेंट जो है वो सेम फेज में है, सेम फिजिकल स्टेट है, होमोजीनियस है, तो आपके पास में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू द हेट्रोजीनियस। चलिए फिर भी हम जो है वो इसकी फिजिकल स्टेट की अगर बात करें तो देखिएगा, द फिजिकल स्टेट कैन बी गैस, इट कैन बी लिक्विड और इट कैन बी सॉलिड। इन द गैसियस मॉलिक्यूल्स देयर आर मैक्सिमम स्पेस, साथ ही साथ में इनके लिए काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होती है। फॉर द गैसियस सब्सटेंस काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो हमें पता है कि इसकी स्टेबिलिटी जो है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी कम हुई और जब स्टेबिलिटी कम है तो रिएक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होगी, और रिएक्टिविटी ज़्यादा है मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा फॉर द गैसियस सब्सटेंस। सॉलिड की बात करें, लिक्विड का दोनों के मिड में आएगा। सॉलिड के अंदर जो है वो क्या है, देयर इज नो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। जब इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस नहीं है, साथ ही साथ में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल है वो मैक्सिमम है। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, जब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, स्टेबिलिटी जो है वो आपके पास में एनर्जी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्टेबिलिटी विल बी मैक्सिमम देयर, दैट इज व्हाई रिएक्टिविटी जो है इसकी लेसर होगी, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी जो है वो कम होगी। मीन्स इफ द रिएक्टेंट्स आर गैसियस इन स्टेट, इफ द रिएक्टेंट्स आर इन गैसियस स्टेट, उनका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है लिक्विड से और सॉलिड से। सो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ द फिजिकल स्टेट, किसके लिए? रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कीप वॉचिंग। चलिए कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं। हाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अफेक्ट टू द रेट ऑफ रिएक्शन। देखिएगा, जनरली आपके पास में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन जो है ऑफ रिएक्टेंट जितना ज़्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही ज़्यादा होता है। कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट आप जितना ज़्यादा लेंगे, प्रोडक्ट जो है वो उतना ही ज़्यादा बनेगा, उतना ही जल्दी बनेगा। इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन मोस्ट ऑफ द केसेस। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपके पास में जो है वो रेट कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जो है वो अफेक्ट करे या डिपेंड करे। एक से ज़्यादा अगर रिएक्टेंट प्रेजेंट है, सपोज दैट आर एंड Q, these are the two reactants, हो सकता है रेट जो है वो किसी एक ही रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रही हो। रेट कैन डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज टू, दोनों के ऊपर भी जो है वो डिपेंड कर सकती है। हो सकता है दोनों में से किसी पर भी जो है वो नहीं जो है वो डिपेंड कर रही हो। सो रेट ऑफ द रिएक्शन अफेक्ट विद द कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन से अफेक्ट तो होती है लेकिन
अलग अलग रिएक्शन के लिए इसका इफेक्ट जो है वो अलग अलग है। कई बार आपके पास में रिएक्शंस जो होती हैं उसमें जितने भी रिएक्टेंट है, सपोज दैट 2 रिएक्टेंट है, दोनों की ही कॉन्सेंट्रेशन रेट को अफेक्ट कर रही है। हो सकता है किसी एक की कर रही हो, हो सकता है किसी की भी ना कर रही हो, बट इन द जनरल कंडीशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जितना ज़्यादा आपके पास में रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही ज़्यादा मिलेगा। चलिए इसी के अकॉर्डिंग हम आगे जो है वो बात करेंगे अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये इसी कॉन्सेंट्रेशन का जो इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, यही जो चीज़ है वो हमें पता करनी है, या यही इसी बात को हमें आगे जो है वो एकदम डिटेल्ड स्टडी करना है इन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, राइट। सपोज दैट कोई भी रिएक्टेंट जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन रेट को अफेक्ट नहीं कर रहा, इट विल बी द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओनली वन रिएक्टेंट, concentration of only one reactant affect to the rate of reaction, it will be the first order। दो अगर है तो second order, third order, इस तरह से आपके पास पे फॉर्मेशन जो है वो होता है, या आगे हम जो है वो अच्छे से इन डिटेल स्टडी करेंगे। चलिए अभी हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज कैटलिस्ट। चलिएगा कैटलिस्ट की अगर मैं बात करूं तो देखिए, यस कैटलिस्ट also affect to the rate of reaction। The question is what is catalyst? होते क्या है catalyst? These are the chemical species or the chemical substance which affects रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं वो होते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का बहुत कम अमाउंट चाहिए, वेरी माइन्यूट अमाउंट इज रिक्वायर्ड, वेरी माइन्यूट अमाउंट इज रिक्वायर्ड ऑफ कैटलिस्ट। बहुत कम, थोड़ा सा कैटलिस्ट अगर आपने लिया है तो आपका जो है वो काम हो जाएगा। नेवर पार्टिसिपेट, catalyst will never participate during the reaction, never participate during the reaction, only presence is required, ओनली प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड हेयर। ये आपके पास में कभी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। जस्ट लाइक विदाउट टीचर एग्जाम पॉसिबल है? नहीं हो सकता है। ऑनलाइन बात अलग है, लेकिन ऑनलाइन में भी जो है वो अगर आपका एग्जाम हो रहा है तो आपको टीचर जो है वो वॉच करता है। अदर दैन दैट विदाउट टीचर एग्जाम पॉसिबल नहीं है, लेकिन एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है टीचर, राइट। सिर्फ उनकी प्रेजेंस जो है वो रिक्वायर्ड होती है। वही मैंने कहा ये क्या है, इनकी सिर्फ प्रेजेंस रिक्वायर्ड है, ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, राइट। चलिए दूसरी बात अगर हम करें, वेरी माइन्यूट अमाउंट इज रिक्वायर्ड हेयर ऑफ द कैटलिस्ट टू इंड्यूस द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन को इंड्यूस करने के लिए। लाइक कितने सारे बच्चे जो है वो एक क्लासरूम में बैठे होते हैं इन द एग्जामिनेशन सेंटर, बट उनको वॉच करने के लिए जो टीचर होते हैं वो एक या दो ही होते हैं, राइट। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द रिएक्टेंट, जितना भी आपके पास में जो भी रिएक्शन हो रहा है वो जो सब्सटेंस है उसके कंपैरिजन में कैटलिस्ट जो है वो बहुत ही कम अमाउंट में यहाँ पर जो है वो रिक्वायर्ड है, कभी भी यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होगा, सिर्फ प्रेजेंस रिक्वायर्ड है। ये एज इट इज आपको जो है वो एंड में प्रोडक्ट में जो है वो मिल जाते हैं, साथ ही साथ में रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। चलिएगा अब एक चीज़ अगर बात करें तो कैटलाइसिस जो है हो रहा है, जो कैटलिस्ट हैं वो दो तरह से जो है वो बताए जाते हैं, पॉजिटिव और द निगेटिव। इसका भी रिकमेंडेशंस चेंज हुआ है। अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट टाइम आप जो है वो जो भी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएं उन्हें कैटलिस्ट बोलते हैं, जबकि जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम करें उन्हें इनहिबिटर्स बोला जाता है। पहले इनको प्रोमोटर्स और इनहिबिटर्स बोला जाता था और इन्हें कैटलिस्ट की ही कैटेगरी में रखा गया था। नाउ कैटलिस्ट दोज केमिकल सब्सटेंस विच अफेक्ट टू द रेट ऑफ रिएक्शन, जनरली आप जो है वो इंक्रीज की ही बात करेंगे, जो इंक्रीज कर दे रेट ऑफ रिएक्शन को, जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है उन्हें इनहिबिटर्स बोला जाता है।
that substances are inhibitors, right? So this is about the theorem of the catalyst. अब हम जो है वो catalyst का जो है वो activity बताते हैं, mechanism बताते हैं कि catalyst जो है वो कैसे काम करता है. देखिएगा, चलिए कैटलिस्ट का जो मैकेनिज्म है कि कैटलिस्ट कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है, हम उसकी बात करते हैं, उसे समझने का ट्राई करते हैं बाय द हेल्प ऑफ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम जो है वो यहाँ पे समझने का ट्राई करते हैं कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे अफेक्ट कर रही है. हैव अ लुक हियर. ऑन दिस वाई एक्सिस एनर्जी मैंने लिया है, ऑन एक्स एक्सिस आई एम टेकिंग अबाउट द rate of reaction. Rate of reaction on the x-axis, energy on the y-axis, right? चलिएगा, ये कोई रिएक्शन है जिसमें ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो है वो बन रहा है यहाँ. दिस इज रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है. रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो बनता है वो एक पर्टिकुलर पाथवे से जो है वो फॉलो होता है. एंड दिस द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड हेयर, द एनर्जी which is required here, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जितना एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे हम कहते हैं EA, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज द रिएक्शन. रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए पहले जो है वो क्या करना पड़ रहा है कि इतना एनर्जी जब इसने लिया तब ये जाकर के प्रोडक्ट में जो है वो कन्वर्ट हो सकता है. द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट वो एक्टिवेशन एनर्जी होता है. दिस इज अबाउट द एक्टिवेशन एनर्जी. इतना एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड है. अब मान लीजिए आपने जो है वो यहाँ पे यूज किया कैटलिस्ट को, तो अभी जो है वो क्या होगा, when we are using catalyst or when catalyst is used. कैटलिस्ट अगर आप यूज कर रहे हैं तो देखिएगा क्या होगा. दिस इज अबाउट एनर्जी एंड रेट ऑफ रिएक्शन एयर. जहां पहले एनर्जी रिक्वायर्ड थी, अभी वहीं पर, चलिए इस ग्राफ को मैं थोड़ा बड़ा ही बना देती हूँ. आई होप आपको नजर आ रहा हो, बोर्ड जो है वो कवर हो रहा हो. चलिएगा देखिए, दिस इज एनर्जी, दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन. ये रिएक्टेंट के लिए एनर्जी था, अभी ये जो है वो इतनी सी एनर्जी लेकर के ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगा है. दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी हेयर. देखिएगा, या यहीं पे मैं एक बार जो है वो, अगर आपको ये नहीं नजर आ रहा है आप इसी में देखिए. दिस इज द पाथ विच फॉलोड बाय द रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट व्हेन कैटलिस्ट इज नॉट प्रेजेंट हेयर. अभी आपने कैटलिस्ट को यूज किया तो ये इस पाथ को जो है वो फॉलो करने लगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन अब की बार जो एनर्जी चाहिए वो सिर्फ इतनी ही चाहिए. दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी व्हेन वी आर यूजिंग कैटलिस्ट. यहाँ पर आपने कैटलिस्ट को यूज किया है, ऊपर वाले में कैटलिस्ट को यूज नहीं किया था. मतलब क्या किया कैटलिस्ट ने, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है ये. इट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी, राइट. एक्टिवेशन एनर्जी को जो है वो कम कर देता है और इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाती है. पहले इतना एनर्जी रिक्वायर्ड था, अब कम एनर्जी रिक्वायर्ड है. जब कम एनर्जी रिक्वायर्ड है तो रिएक्शन का रेट जो है वो इंक्रीज होगा ही होगा, बढ़ जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन. दैट इज व्हाई दिस इज द इफेक्ट ऑफ द कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन. कैटलिस्ट को यूज किया, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है. कुछ कैटलिस्ट ऐसे भी होंगे जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देंगे, बट उसे आप कैटलिस्ट की कैटेगरी में नहीं, उन्हें आप इनहिबिटर्स जो है वो बोलते हैं, राइट. दिस इज ऑल अबाउट द इफेक्ट ऑफ द कैटलिस्ट ऑन रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि क्या कर रहा है, बाय यूजिंग कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रही है. नेक्स्ट फैक्टर की बात करें, टेम्परेचर है. चलिए बात करते हैं टेम्परेचर की. यस, टेम्परेचर की अगर बात करें तो देखिए, when we increase in the temperature, rate of reaction will also be increased there.
डायरेक्ट प्रपोर्शन रिलेशन है टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन पे, और रेट ऑफ रिएक्शन पे जो टेम्परेचर का इफेक्ट है इसको बताया जाता है बाय द आर्हेनियस कंसेप्ट, आर्हेनियस थ्योरी, जो इसी वाले चैप्टर का आगे जो है वो टॉपिक है। हालांकि वो टॉपिक कोविड की वजह से रिड्यूस्ड हो चुका है, चलेगा। टेम्परेचर, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन विल ऑल्सो बी इंक्रीज देयर। रीजन क्या है? टेम्परेचर अगर आपने बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। या आप कह सकते हैं टेम्परेचर अगर आप दे रहे हैं तो मॉलिक्यूल जो है उनका मूवमेंट बढ़ जाएगा, कोलिजन बढ़ेंगे। नंबर ऑफ कोलिजन जब बढ़ेंगे तो आपके पास में ये भी आगे कोलिजन थियरी आएगी, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ते हैं। When we increase the temperature, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ता है। जब पार्टिकल्स का मूवमेंट ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, नंबर ऑफ कोलिजन ज़्यादा, तो आपके पास में रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगी। आप डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी से भी बता सकते हैं। टेम्परेचर हाई, एनर्जी हाई, स्टेबिलिटी लो, रिएक्टिविटी हाई। ओके, सो बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, राइट। इसमें आपने जो है वो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए भी अगर जो है वो कभी डिस्कस किया हो इन 11th स्टैंडर्ड। तो बात अगर करें हम, अगर मान लीजिए हीट इवॉल्व नहीं हो रही है, इन्वॉल्व हो रही है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए हीट अगर इन्वॉल्व हो रही है, आपने यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाया है तो रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट जो है वो कहाँ पर? फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो है वो शिफ्ट होती है। इट मीन्स एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है ये प्रोसेस? एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस है, आपने हीट दिया, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। अगर मैं बात करूं ऑफ द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, हीट यहाँ पर क्या कर रही है? इवॉल्व हो रही है, राइट। इन दिस सिचुएशन अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो आपके पास में रेट ऑफ रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा। इसे हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कि जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है वो शिफ्ट होने लगेगी, राइट। दिस इज ऑल अबाउट समथिंग, मैंने जो है वो अबाउट 11th स्टैंडर्ड थोड़ा सा रिकॉल करवाया। टेम्परेचर का इफेक्ट अगर बात करें, टेम्परेचर ज़्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा, रीजन काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, स्टेबिलिटी कम, रिएक्टिविटी ज़्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा, नंबर ऑफ कोलिजन भी ज़्यादा। तो ये हुआ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अभी दो फैक्टर्स और हमारे पास बचे हैं, इंटेंसिटी एंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। इनकी और बात कर लेते हैं, कीप वॉचिंग। यस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट की अगर बात करें तो देखिएगा, दिस फिनोमिनन अफेक्ट टू द फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन, जहाँ पे कि फोटोन लाइट की प्रेजेंस में जो है वो अगर आपके पास में एनर्जी हो रही है तो वो फोटोकेमिकल इक्वेशंस होंगे, फोटोकेमिकल रिएक्शंस होंगे। लाइक ये आपने रिएक्शन जो है वो पढ़ी है इन 11th स्टैंडर्ड। CHCl3, CH2Cl2 and the CH3Cl, right? Okay. Free radical homolytic cleavage will occur here in the presence of H nu क्या है? This is the energy of photon. फोटोन लाइट के छोटे छोटे जो है वो पैकेट्स होते हैं क्वांटाइज फॉर्म में। क्वांटम जो है वो आपने बात करी होगी, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी आप ये चीज़ पढ़ते हैं कि लाइट जो है वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में होती है, फोटोन है, एंड द एनर्जी ऑफ फोटोन इज एच न्यू, राइट। तो ये लाइट की एनर्जी को शो कर रहा है, दिस इज द लाइट, लाइट को शो कर रहा है। CH4Cl2, इसका क्लोरीनेशन अगर होगा, फ्री रेडिकल जो है वो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। ब्रोमीन ले लीजिए, ब्रोमिनेशन करवा लीजिए। दिस रिएक्शन कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट की प्रेजेंस में कैरी हो रही है। ऐसी रिएक्शंस जो कि फोटोकेमिकल रिएक्शन है, वहाँ आपके पास में इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करती है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जितना ज़्यादा होगा,
रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट दैट इज नंबर ऑफ फोटोन्स, कितना नंबर ऑफ फोटोन्स है, नंबर ऑफ फोटोन्स, यस। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जितना ज़्यादा आपके पास में रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही ज़्यादा होता है। जितनी इंटेंस लाइट डाली जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। लेस इंटेंस ले रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जो फोटोकेमिकल हो, जो लाइट की प्रेजेंस में हो रही हो, उन सब रिएक्शंस के लिए इंटेंसिटी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेगी। एंड नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास दैट इज सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। कीप वॉचिंग। चलिए बात कर लेते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन भी उतनी ही ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा सरफेस जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगी। इफ विल जस्ट टॉक अबाउट द एंजाइम्स, बायोलॉजी वाले बच्चों ने पढ़ा होता है। एंजाइम्स की अगर बात करें, दीज आर कोलाइडल इन नेचर, मतलब प्रोटीन। इसमें एक प्रोटीनियस पार्ट होता है, एक नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है, राइट। द एपो एंजाइम एंड द को एंजाइम की हम बात कर रहे हैं। प्रोटीन की अगर मैं बात करूं, एंजाइम जो है वो प्रोटीनियस पार्ट इसके अंदर है और ये जो है वो आपके पास में कोलॉइडल नेचर का है। सॉरी, कोलॉइडल नेचर की अगर आप बात करें, कोलॉइडल पार्टिकल जो है उनका साइज बहुत छोटा होता है और आपके पास में जो है वो आपने कितना बड़ा मॉलिक्यूल लिया है या आप इसको पीसेस में जो है वो कट कर दें, तो छोटा मॉलिक्यूल जितना होगा उसका सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा होगा, राइट। तो यहाँ अगर हम बात करें अबाउट द सरफेस एरिया जितना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। और जब हम बात कर रहे हैं अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये सरफेस एरिया भी आपके पास में जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन, सरफेस एरिया किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए सरफेस एरिया जितना ज़्यादा आपके पास में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन उतना ही जल्दी उतना ही ज़्यादा होगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास में जो है वो क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। सो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट टू द रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें हमने बात की अबाउट द नेचर ऑफ द reactant, the physical state of the reactant, concentration of reactant, catalyst, temperature, intensity of light in the surface area of the reactant. reactant का surface area जितना ज़्यादा रेट उतना ही ज़्यादा, लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा, फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा, टेम्परेचर जितना ज़्यादा कोलिजन उतना ही ज़्यादा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन अगेन हाई। कैटलिस्ट का यूज करने से भी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है। कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी रिएक्टेंट की, आपके पास में रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। गैसियस पार्टिकल्स की रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द लिक्विड एंड सॉलिड की सबसे कम, गैस की सबसे ज्यादा। रिएक्टेंट का नेचर बात करें, आयनिक अगर है तो आपके पास में वो कोवेलेंट के कंपैरिजन में हाई रेट ऑफ रिएक्शन शो करते हैं। साथ ही साथ में रिएक्टेंट जो है वो जितना कम स्टेबल, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा, और रिएक्टेंट जितना ज़्यादा स्टेबल रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही कम होगा। So these all are about the factors which affect to the rate of reaction। और इसी के साथ में हमारी जो है वो आज की क्लास कंप्लीट होती है। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद द न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।